ہم نے سبق اقبال کا نوجوان کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس کے آگے کے حصے کی پڑھائی کریں گے۔ علامہ اقبال نے نونہالان ملت، نونہال کا مطلب ہوتا ہے بچے، ملت ملک، ملک کے بچوں کے لیے کئی ایسی نظمیں تحریر کی جن میں چھپے پیغامات نئی نسل کی سیرت و کردار سازی کے لیے بہت اہم ہیں۔ ایک مکڑا اور مکھی میں پیغام دیا گیا ہے کہ خوشامدی کی باتوں میں آنا جان گنوانے کے مترادف ہوتا ہے۔ جان گنوانے کا مطلب ہے جان ضائع کرنے کے، یعنی بلا وجہ جب جان ضائع کر دی جائے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا جائے تو وہ اس طرح سے ہے، اس سے ملتی جلتی چیز ہے۔ مترادف کا مطلب ملتا جلتا۔ ایک مکڑا اور مکھی ایک نظم کا نام ہے جس میں اقبال نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ خوشامدی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ پہاڑ اور گلہری میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ بڑائی کا تعلق قد و قامت سے نہیں ہے۔ قد و قامت یعنی جس کا قد بہت اونچا ہو، یا جیسے پہاڑ اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتا ہے، تو یہاں پہ بڑائی کا تعلق صرف اونچے ہونے سے نہیں ہے بلکہ حرکت و عمل سے ہوتا ہے، یعنی جب ہم کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں تو تبھی بڑائی کا تعلق بنتا ہے۔ ایک گائے اور بکری والی نظم میں یہ تربیت کی گئی ہے کہ قدرت نے ہمارے لیے جو کردار متعین کر دیا ہے اس پر شکوہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ قناعت کا دامن تھامنا چاہیے۔ کردار متعین کر دیا ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مقرر کیے گئے کردار ہیں، ہمیں ان پر شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو بھی چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ہمیں اسی پر ہی قناعت کرنی چاہیے، یعنی تھوڑے پر ہی ہمیں خوش ہو جانا چاہیے۔ بچے کی دعا کے عنوان کے تحت ایسی نظم لکھی گئی ہے جس سے تعمیر سیرت کے کئی پہلو نکلتے ہیں۔ نظم ہمدردی میں بھی یہ پیغام پوشیدہ ہے، یعنی چھپا ہوا ہے کہ بہترین وہی ہے جو دوسروں کے لیے نفع رساں ہے، فائدہ مند ہے۔ جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہی بہترین ہے۔ مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کی نظر میں ایک مسلمان نوجوان میں درج ذیل صفات کا پایا جانا از حد یعنی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان و یقین رکھے اور اسی پر توکل کرے، یعنی بھروسہ کرے۔ نمبر 2 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت و عقیدت رکھے۔ تیسرا نقطہ یا تیسری بات ہے مسلسل محنت، تگ و دو یعنی سخت محنت، جد و جہد کرنا اور عمل کو اپنا شعار بنائے، یعنی اپنا طریقہ بنائے، اس طریقے پر عمل کرے، محنت مسلسل کرتا رہے۔ نمبر 4 عملی زندگی میں خودداری اور غیرت مندی سے کام لے۔ نمبر 5 اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کے کارناموں کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے اندر ان جیسی صفات پیدا کرے۔ نمبر 6 مغربی تہذیب سے مرعوب نہ ہو، یعنی متاثر نہ ہو، بلکہ اپنے اندر مصطفائی سوچ پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا ہمارے حضور کی طرف سے جو چیزیں، جو سوچ ہمیں بتائی وہ اپنے اندر پیدا کرے۔ نمبر 7 معاشرے میں اس انداز سے زندگی گزارے کہ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ نمبر 8 سحر خیزی کو، صبح جلدی جاگنے کو اپنا وتیرہ بنائے، اپنی عادت بنائے، یعنی علی الصبح عبادت کرنے کی عادت ڈالے۔ نمبر 9 خود کو امت مسلمہ کا فرد سمجھتے ہوئے باہمی اخوت و محبت کو فروغ دے، یعنی محبت اور پیار کو آگے بڑھائے، لوگوں میں محبت پیدا کرے۔
नंबर 10, दरअसल शेर अपनी जिंदगी का नस्बुल ऐन बना ले, अपनी जिंदगी का मकसद बना ले। यकीन मुहक्कम अमल पहम मोहब्बत फाते आलम, जहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। मुहक्कम का मतलब होता है पक्का, पक्का यकीन। पहम लगातार अमल। मोहब्बत फाते आलम, फाते आलम का मतलब होता है दुनिया को जीतने वाला, यानी अपनी मोहब्बत से दुनिया को जीतने वाला बने। जिंदगानी जिंदगी, जिहाद कहते हैं लड़ाई को, यानी जिंदगी की लड़ाई में वो मर्दों की शमशीरें बने, मर्दों की तलवार बने, यानी इतनी उसके अंदर ताकत हिम्मत हो, मेहनत करने की जुस्तजू हो कि वो अपने लगातार अमल से दुनिया में मोहब्बत और प्यार को आगे बढ़ाए। तो ऐसा एक नौजवान को इकबाल बनाना चाहते थे कि दुनिया उससे मोहब्बत करे। यहाँ ये सबक मुकम्मल हो गया है। अब हम बढ़ते हैं इसके सवालात की जानिब। सवाल नंबर 1 देखिए, अल्लामा इकबाल का लक़ब क्या है? हमने क्या पढ़ा था इस सबक में? अल्लामा इकबाल का एक लक़ब हमने पढ़ा था। चलें देखते हैं कि हमने उस लक़ब को किस जगह पढ़ा था सबक में। तो देखिए सबक का दूसरा पैराग्राफ, शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नज़दीक भी नौजवानों का किरदार बहुत अहम है। यहाँ पे हमने लक़ब पढ़ा था शायर मशरिक, मशरिक का शायर। तो जवाब लिखने के लिए कुछ हिस्सा हम सवाल से ही लेंगे। अल्लामा इकबाल का लक़ब क्या को हटा देंगे और इसकी जगह लिखेंगे शायर मशरिक है। फिर लिखना है आगे ये सवालिया निशान को हटाकर खत्मा की अलामत लगानी है। तो हमने क्या किया कि सवाल में से क्या के लफ्ज़ को हटाकर उसकी जगह शायर मशरिक लिख दिया और सवालिया निशान को हटा के जवाब में खत्मा की अलामत लगा दी। अल्लामा इकबाल का लक़ब शायर मशरिक है। अब बारी है सवाल नंबर 2 की। किस नज़्म में इकबाल ने नौजवानों में उकाबी रूह पैदा करने की बात की है? तो चले सबक में से हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमने यहाँ पढ़ा था, एक नौजवान के नाम अपनी नज़्म में वो फरमाते हैं, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में। तो यहाँ इस नज़्म के एक शेर में उकाबी रूह के बारे में बात हुई थी। तो नज़्म का नाम है एक नौजवान के नाम। तो जवाब के लिए हम सवाल से ही कुछ हिस्सा लेंगे, किस को हटा दें और हमने लिखना है नज़म। नज़म के बाद नज़म का नाम लिखेंगे। एक नौजवान के नाम में इकबाल ने नौजवानों में उकाबी रूह पैदा करने की बात की है और फिर सवालिया निशान को हटाकर जवाब में हम खत्मा की अलामत लगा देंगे। तो जवाब के लिए हमने सवाल में से सबसे पहला लफ्ज़ किस को हटाया, नज़म का लफ्ज़ लिखकर आगे नज़म का नाम लिखना है, एक नौजवान के नाम, और फिर आगे सारा सवाल का हिस्सा लिखेंगे हम, में इकबाल ने नौजवानों में उकाबी रूह पैदा करने की बात की है। फिर सवाल में से सवालिया निशान को हटाकर जवाब में हम खत्मा की अलामत लगा देंगे और इस तरह से इस सवाल का जवाब मुकम्मल हो जाएगा। सवाल नंबर 3, इस सबक में इकबाल की बच्चों के लिए लिखी जाने वाली कौन कौन सी नज़मों का जिक्र आया है? तो चलें हम देखते हैं कि हमने इकबाल की कौन कौन सी नज़मों का नाम ऊपर पढ़ा था जो उन्होंने बच्चों के लिए लिखी हैं। इस पैराग्राफ में देखिए नज़मों के नाम लिखे हैं, एक मखड़ा और मक्खी, फिर है पहाड़ और गुलहरी, अगली नज़म का नाम है एक गाय और बकरी, और फिर हमने नज़म का नाम पढ़ा था बच्चे की दुआ, और आखिरी नज़म जिसका हमने जिक्र यहाँ पढ़ा था वो है हमदर्दी। तो ये 5 नज़में हैं जिनका जिक्र इस सबक में आया है और भी बहुत सी नज़में इकबाल ने बच्चों के लिए लिखी हैं। तो इस सवाल के जवाब के लिए भी हम कुछ हिस्सा सवाल से ही लेंगे। इस सबक में इकबाल की बच्चों के लिए लिखी जाने वाली
कौन सी की जगह पे इन का लफ्ज़ लिखना है, लिखी जाने वाली इन नज़मों का जिक्र आया है। और फिर आगे सवालिया निशान को हटाकर खत्मा लगाएंगे और नज़मों के नाम लिख देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे जवाब लिख दिया है। सवाल में से कौन सी का लफ्ज़ हटाकर वहाँ पे लिखना है इन नज़मों का जिक्र आया है, सवालिया निशान को हटाकर खत्मा लगाया और फिर नज़मों के नाम लिखे। एक मखना और मक्खी, पहाड़ और गुलहरी, एक गाय और बकरी, बच्चे की दुआ और हमदर्दी। और इस तरह से हमारा इस सवाल का जवाब भी मुकम्मल हो जाएगा। अब आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है और साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश करनी है।